Hello and namaskar दोस्तों. I welcome you all in my online learning platform of Crack Rugby. So friends, we have started a series of industrial relation and labor laws and social security. So in this series, I have already covered theories related to collective bargaining, and in today's lecture we will discuss about the function and essential condition for the collective bargaining. So before moving further, I want to give you information that we have prepared a study material on industrial relation, labor law, social security, general accounting principle and Indian economy. It will cost you 1699, and if you want to purchase only industrial relation, labor law, social security, general accounting principle, it will cost you 1499. And if you want to purchase only industrial relations, labor laws and social security, it will cost you 1299. So friends, if you want to purchase this material, visit our website www.crackgradeb.com, and in the material section, as soon as you will purchase our material, we will send a hard copy of this material to your registered address. आज के केस में अभी लॉकडाउन की कंडीशन में इसकी हार्ड कॉपी को भेजना पॉसिबल नहीं है, बट वी हैव मेक अ प्रोविजन. एज सून एज यू परचेज दिस मटेरियल फ्रॉम आवर वेबसाइट, वी विल गिव यू अ एक्सेस टू रीड दिस मटेरियल ऑनलाइन. सो फ्रेंड्स, दिस इज अ स्मॉल इंफॉर्मेशन. और अगर आप ये हमारा मटेरियल का सैंपल देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे इस मटेरियल का सैंपल दिया गया है, एंड वी विल cover each and every aspect of industrial relation, labor laws and social security, and we will try to help you there. If we find any current development regarding this material, we will send you the copy in the form of PDF of this current development at your mail ID. So आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है. We will try our best to cover this topic from our side. Okay, and videos में जितना मेरे से पॉसिबल होता है मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बट मेरा व्यू ये है कि आप हार्ड कॉपी को लीजिए और पढ़िए, उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा. तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं. टुडे वी विल डिस्कस फंक्शंस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग. Friends, according to Professor Butler, he viewed the function as a process of social change, a peace treaty between two parties, and a system of industrial jurisprudence. देखिए, ये तीन जो मैंने आपको फंक्शंस बताए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं. एक दो फंक्शंस और हैं जो आप अपने किसी भी सोर्स से देख सकते हैं, बट ये तीन फंक्शंस ऐसे हैं जिनको मैं थोड़ा डिटेल में आपसे डिस्कस करूंगा. So first we will see collective bargaining as a process of social change. देखिए social change क्या होता है. Collective bargaining enhance the status of the working class in the society. Wage earners have enhanced their social and economic position in relation to the other groups. मैं आपको इसको डिटेल में बताता हूं. एंड सेकेंड पॉइंट और इसका एक बार पढ़ लेते हैं. एम्प्लॉयर्स हैव ऑल्सो रिटेन हाई पावर एंड डिग्निटी थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग. अब इन दोनों पॉइंट को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं. देखिए, एक एग्जांपल मैं आपको पहले बताता हूं, आगे देखते हैं. एक एग्जांपल है इसका. एक केस स्टडी मैंने छोटी सी रखी है. इसमें देखिए, अ मल्टीनेशनल कंपनी स्पेशलाइज इन फूड प्रोसेसिंग हैज बीन ऑपरेटिंग इन इंडिया फॉर अबाउट 3 decades. वो एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो 30 साल से काम कर रही है इंडिया में, और कंपनी हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू एक्सपेंड इट्स प्रोडक्शन. कंपनी ने डिसाइड किया कि वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, और इट हैज डिसाइडेड टू शिफ्ट द फैक्ट्री टू न्यू लोकेशन अबाउट 20 kilometers away from its present site. So as the workers transferred to the new site were living in town, the union demanded an increase of rupees 200 per month in the salary, but the company offered to give rupees 100 only to cover the transport cost. अब यहाँ पे देखिए, इसमें एम्प्लॉयर्स या मैनेजमेंट और यूनियन के बीच में डिस्प्यूट खड़ा हो गया. किसको लेके? पैसे को लेके.
यूनियन मांग रहे हैं 200 रुपए पर मंथ इंक्रीमेंट, बट कंपनी इज एबल टू गिव, कंपनी इज ऑफरिंग ओनली 100 रुपीज ओनली टू कवर द ट्रांसपोर्ट। अब देखिए इसमें क्या हुआ, कलेक्टिव बार्गेनिंग की प्रोसेस जो मैंने आपको पहले बताई थी, आपको याद होगा कि प्रिपेयर करना है, उसको ड्राफ्ट फॉर्म में लाना है, सेटलमेंट करना है, तो वो सारी की सारी प्रोसेस हुई। अब फाइनल कंक्लूजन क्या हुआ यहाँ पे कि ये 200 रुपए वाली जो बात है यूनियन ने जो रखी थी, कंपनी ने उसको मान लिया। अब एक बात देखिए, एक वर्कर लेवल का आदमी है जो, चलिए मैंने यहाँ पे सिलाई मशीन का एक एग्जांपल ले लिया है, और उसको 20 किलोमीटर के लिए 25 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, यानी कि इसका घर जो है वो 20 किलोमीटर दूर है। अब अगर वो 25 रुपए यानी कि 50 रुपए खर्च करता है, पर मंथ की बात मैं कर रहा हूं यहाँ पे, तो उसको 200 रुपए में से 100 रुपए बचेंगे। अब वो ये 100 रुपए कहीं भी यूज कर सकता है, अपनी फैमिली की ग्रोथ में, हो सकता है कि वो अपने बच्चे की पढ़ाई में उसको खर्च कर दे, उनको अच्छी हेल्थ दे दे, या फिर अपने घर को ही अच्छा इंप्रूवमेंट कर दे, या अपने सोशल स्टेटस को और इंप्रूव कर ले। तो इस एग्जाम्पल से ये समझ में आया कि कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस ने जो 200 रुपए की डिमांड यूनियन ने रखी थी, दिस कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस ने उस 200 रुपए की डिमांड को मान लिया, और इस वर्कर की लाइफ में, इस वर्कर के जीवन में एक सोशल चेंज आया। ये सोशल चेंज जो है वो उसकी हेल्थ के रूप में भी हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ हेल्थ, इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, इन एनी फॉर्म दिस वर्कर इज गेटिंग बेनिफिट ऑफ दिस 200 रुपीज। और ये 200 रुपीज को कहां से मिले? थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, कि अगर कलेक्टिव बार्गेनिंग सक्सेसफुल होती है तो वर्कर और एम्प्लॉयर के लाइफ में सोशल चेंज को ला सकती है। तो एक छोटी सी केस स्टडी मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। अब देखिए एक चीज और है, एम्प्लॉयर्स हैव आल्सो रिटेन द हाई पावर एंड डिग्निटी थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग। इस केस में एक एग्जांपल देखते हैं कि मान लीजिए यूनियन और एम्प्लॉयर के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया। उस केस में यूनियन ने अपनी डिमांड एम्प्लॉयर के सामने रखी, लेकिन एम्प्लॉयर ने उसकी यूनियन को रजिस्टर्ड या उसके रिप्रेजेंटेटिव को मानने से मना कर दिया। अब इस केस में क्या हुआ कि एम्प्लॉयर्स ने यूनियन को कंट्रोल करने के लिए उनकी जो डिमांड थी वो अननेसेसरी डिमांड थी, और जिनका कोई महत्व नहीं था, इस केस में उसने रिप्रेजेंटेटिव को मानने से इनकार कर दिया। तो इस केस में क्या हुआ, एम्प्लॉयर के पास भी हाई पावर जो है वो रिटेन हुई। तो इस कलेक्टिव बार्गेनिंग ऑफ प्रोसेस एज अ सोशल चेंज को अगर हम इस फॉर्म में देखें, तो एक तरह से एम्प्लॉयर ने भी अपनी पावर को, अपने सोसाइटल स्टेटस को भी चेंज किया। तो ये हो गया फंक्शन ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। अब देखते हैं फ्रेंड्स अगला, फंक्शन ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग एज अ पीस ट्रीटी। अब कलेक्टिव बार्गेनिंग को एक पीस ट्रीटी के रूप में कैसा देखा जा सकता है, मतलब कि इसका ये भी एक फंक्शन है। देखिए कलेक्टिव बार्गेनिंग इज अ प्रोसेस, तो जो फंक्शंस हैं, वी कैन से दिस फंक्शन एज द आउटकम ऑफ दिस कलेक्टिव बार्गेनिंग ऑल्सो। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग अगर नहीं होती, तो मान लीजिए कि यूनियन और मैनेजमेंट के बीच में कोई एक डिस्प्यूट है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, वो लंबे समय से चल रहा है, तो मतलब उससे प्रोडक्शन पर भी इफेक्ट पड़ रहा है, वर्कर्स की लाइफ पे भी अफेक्ट पड़ रहा है, रोज रोज स्ट्राइक्स हो रही हैं, प्रोडक्शन लॉस हो रहा है, एम्प्लॉयर भी स्ट्रेस में है, वर्कर भी स्ट्रेस में है। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस से अगर उनके बीच में कोई पीस ट्रीटी हो रही है या कंप्रोमाइज हो रहा है, तो इट इज गुड फॉर बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। तो वी कैन से दैट collective bargaining as a peace treaty is also a function of collective bargaining. So I think this is clear for you. So हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग एज एन इंडस्ट्रियल जूरिस्प्रूडेंस। कलेक्टिव बार्गेनिंग क्रिएट्स अ सिस्टम ऑफ इंडस्ट्रियल जूरिस्प्रूडेंस। इट इज अ मेथड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग सिविल राइट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, सिविल राइट्स वर्ड आप याद रखना, मैं इसको भी अगले एग्जाम्पल में बताऊंगा कि सिविल राइट्स कैसे पिक्चर में आए एज अ फंक्शन ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। ठीक, इनटू इंडस्ट्री इट एस्टेब्लिश रूल्स व्हिच डिफाइन एंड रेस्ट्रिक्ट द ट्रेडिशनल अथॉरिटी एक्सरसाइज बाय एम्प्लॉय ओवर देयर एम्प्लॉइज, प्लेसिंग पार्ट ऑफ द अथॉरिटी अंडर जॉइंट कंट्रोल ऑफ यूनियन एंड मैनेजमेंट। देखिए इसको दो वर्ड याद रखना
कि अगर किसी भी डिस्प्यूट, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट, किसी भी प्रॉब्लम को लेके कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस अगर हुई है तो उसका आउटकम वी कैन गेट इन द फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियल जूरिस्प्रूडेंस ऑल्सो। इंडस्ट्रियल जूरिस्प्रूडेंस के एग्जाम्पल में सिविल राइट्स को भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और कुछ रूल्स को भी डिफाइन किया जा सकता है फ्रॉम द अथॉरिटी एक्सरसाइज बाय द एम्प्लॉयर। तो एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स इसका अगले। देखिए एक केस मैंने यहाँ पे बताया था, केस ऑफ ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन वर्सेस एनआई ट्रिब्यूनल का एक केस था। इसमें क्या हुआ था, द राइट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ट्रेड यूनियन दैट आर एनकम्पस्ड विद इन द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, दैट इज आर्टिकल 91C। देखिए फ्रेंड्स अगले आने वाले कुछ लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किन किन सेक्शंस में, किन किन शेड्यूल्स में डिफाइंड किए गए हैं। अब देखिए कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस जो वहां पर हुई, देखिए ये केस तो, लेकिन अगर मैं इसको बोलूं तो ये तो कोर्ट में पहुंच गया था, ट्रिब्यूनल्स में पहुंच गया था, बहुत सारी चीजें थी। लेकिन इसमें अगर मैं आपको कलेक्टिव बार्गेनिंग के एग्जाम्पल से इस केस को डिस्कस करूं तो देखिए यहाँ पे इसके आउटकम्स क्या क्या है। द राइट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द यूनियन टू मीट, मतलब लोगों जो यूनियंस के मेंबर्स थे, एम्प्लॉयर ने बोल दिया मैं आपको मिलने नहीं दूंगा, वो राइट्स इनको यहाँ मिल गए। राइट ऑफ द मेंबर्स टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये भी एक राइट था, वो भी उनको अलाउ कर दिया गवर्नमेंट ने। द राइट टू डिस्कस देयर प्रॉब्लम एंड प्रोपेगेट देयर व्यूज, ये भी गवर्नमेंट ने या कोर्ट ने जो आदेश दिया उसके बाद इसने बैंक के एम्प्लॉइज ने बैंक ने उसको अलाउ कर दिया था। राइट ऑफ द मेंबर्स टू होल्ड प्रॉपर्टी, एक ये भी राइट उनको मिल गया। तो देखिए एक केस में जो केस आपका कोर्ट में पहुंच गया, लेकिन इससे पहले ऐसा नहीं है कि इसमें कलेक्टिव बार्गेनिंग नहीं हुई है। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग को अगर मैं इस चीज को केस के रूप में ना देख के देखूं तो उसने क्या किया, इसने ये सारे के सारे राइट्स को एम्प्लॉइज को और वर्कर्स को दिलवा दिया। तो दिस इज द आउटकम ऑफ द कलेक्टिव बार्गेनिंग। ये मुझे लग रहा है पॉइंट आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स एसेंशियल कंडीशन फॉर सक्सेस ऑफ सीबी, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव बार्गेनिंग। देखिए कोई भी प्रोसेस होनी है या कुछ भी होना है, उसकी कुछ प्री कंडीशंस होती हैं, कुछ उसकी एसेंशियल कंडीशंस होती हैं उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए, उसको फ्रूटफुल बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर भी कुछ कंडीशंस हैं जो मैंने आपको डिफाइन किए हैं, वो मैं आपको यहाँ इसलिए बता रहा हूँ कि इस पर कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकता है कि उसने बोल दिया, यूपीएससी ने आपसे पूछ लिया कि इसमें कौन सी कंडीशन है जो कलेक्टिव बार्गेनिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए यूज होती है या नहीं यूज होती है, थोड़ा सा घुमा सकता है। तो इसके लिए आपको छोटी छोटी कंडीशंस है याद रख लेनी चाहिए। देखिए ये बहुत सिंपल कंडीशंस हैं, इनको याद करना इज नॉट अ वेरी टफ टास्क। फर्स्ट वन इज बार्गेनिंग पावर ऑफ टू पार्टीज इज रिलेटिवली इक्वल एंड इज एक्सरसाइज विद रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, जो दो पार्टीज आपस में कलेक्टिव बार्गेनिंग कर रही हैं वो रिलेटिवली इक्वल होनी चाहिए और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनमें किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक, अब इसका एक प्रिंसिपल है फ्री कंसल्टेशन एंड फ्री एंटरप्राइजेस। कोई तीसरी पार्टी नहीं लानी है अंदर। तीसरी पार्टी देखिए वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट में आएगी, बट कलेक्टिव बार्गेनिंग इज अ प्रोसेस जिसमें दो पार्टी हैं, दो पार्टी को आपस में केवल समझौता करना है। वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में थर्ड पार्टी का यूज होता है। इस पर ईपीएफओ में 2017 के पेपर में क्वेश्चन भी आया था, वो जो मैं आपको बता रहा हूँ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, वो मैं अपने अगले लेक्चर से शुरू करने वाला हूँ क्योंकि आज के लेक्चर के बाद कलेक्टिव बार्गेनिंग टॉपिक मेरी तरफ से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं म्यूचुअल कॉन्फिडेंस एंड गुड फेथ। नेचुरल सी बात है, तो होना ही चाहिए। दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, एक दूसरे की बातों को रख रहे हैं, तो ये नहीं होगा तो आप कैसे कलेक्टिव बार्गेनिंग को सक्सेसफुल बना दोगे, नहीं हो सकता। एंड एम्फेसिस अपॉन अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच विद एम्फेसाइज अपॉन द एक्सेसिव लीगल इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो कहीं दो लोग बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ मैनेजमेंट और यूनियन ही बात कर रही है, अब वो कोई उसमें ज्यादा लीगलिटी डालने की कोशिश करेंगे तो कलेक्टिव बार्गेनिंग कभी सक्सेसफुल नहीं होगी क्योंकि वो लीगल हो जाएगा तो वो कोर्ट में केस चला जाएगा, वहां जाके आपको करना है। कलेक्टिव बार्गेनिंग मैनेजमेंट और यूनियन लेवल पर ही खत्म करनी चाहिए। तो इसका जो अप्रोच होनी चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए, दोनों को कंप्रोमाइज करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। लेकिन आप ज्यादा लीगल हो जाओगे, हाँ भैया डॉक्यूमेंट में ये लिखा है मैं तो नहीं मान रहा इसको, मैनेजमेंट कह रहा है, उधर ही वर्कर बोल रहे हैं कि नहीं साहब मेरे डॉक्यूमेंट के साथ तो ये आपको मानना पड़ेगा, तो फिर वो केस कलेक्टिव बार्गेनिंग का ना रह के वो लीगल केस बन जाएगा और फिर ये सक्सेसफुल नहीं होगा। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एसेंशियल कंडीशन फॉर दिस। डिस्पोज ऑफ द इशू इन द सेम मीटिंग एंड मिनिमाइज द पेंडिंग टाइम्स। अच्छा है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस के जो मैंने आपको 4
प्रोसेस के तरीके बताए थे, तो उसको आप 1 2 3 मीटिंग में खत्म करो, इतना लंबा क्यों खींचना है। तो ये भी एक इसके लिए एसेंशियल कंडीशन है। डिजायर ऑफ द मैनेजमेंट टू सेटल द इशू, अगर मैनेजमेंट चाहे कि यहाँ इशू सच में सेटल करना है तो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको लगता है कि नहीं वर्कर्स को घुमाना है तो फिर तो चलता ही रहेगा, कलेक्टिव बार्गेनिंग लंबी चलेगी। तो ये मैनेजमेंट की डिजायर पर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। यूनियन मस्ट अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक implication ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड रियलाइज दैट यूनियन डिमांड मस्ट बी मेट फ्रॉम द इकोनॉमिक सोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वर्कर्स को भी समझना चाहिए कि जो कंडीशंस जो उन्होंने अपनी मांगे रखी हैं वो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट राजी होना चाहिए, और कहीं ना कहीं मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है उन उसके इनकम सोर्स को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। मान लिया कि कंपनी का टर्नओवर है कम और आप उसे डिमांड करें कि भैया मुझे ये भी फैसिलिटी चाहिए, तो वर्क आपको कभी भी एम्प्लॉयर नहीं देगा। ये यूनियन को सोच के चलना पड़ेगा। एंड बोथ द पार्टी शुड रिप्रेजेंट द राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच अदर, वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों को समझना चाहिए कि एम्प्लॉय के राइट्स क्या है, मैनेजमेंट को समझना चाहिए कि वर्कर्स के राइट क्या है, वर्कर्स को समझना चाहिए एम्प्लॉय के राइट्स क्या है। अगर ये दोनों चीजें समझ के चलेंगे तो ये आपकी कलेक्टिव बार्गेनिंग फ्रूटफुल होगी, सक्सेसफुल होगी। द प्रोसेस ऑफ बार्गेनिंग शुड बी फ्री फ्रॉम अनफेयर प्रैक्टिसेस। देखिए कोई भी अगर चाहेगा कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस को अननेसेसरी डिले कराने की कोशिश कर सकता है। क्यों? उसको लगा कि भाई ठीक है, मतलब जैसे यूनियन ही है, मैनेजमेंट कहेगा कि यूनियन के नेता को पैसे से देके खरीद लेता हूँ, तो आप समझ लीजिए कि कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है ना वो कभी सक्सेसफुल नहीं होगी। अपने यूनियन के नेता को पैसे लेके खरीद लिया मैनेजमेंट ने, तो फिर आप मतलब कलेक्टिव बार्गेनिंग को कैसे फ्रूटफुल बनाओगे? नहीं बनेगी, नेवर। तो एक अनफेयर प्रैक्टिसेस कभी नहीं घुसने चाहिए। तो ये कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग की, और मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब ये मेरी तरफ से आज कलेक्टिव बार्गेनिंग खत्म हो गया है। अब मैं वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। फ्रेंड्स इसको आप पॉज करके देख लेना। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल का सिलेबस हमने ये तैयार किया है, इंडस्ट्रियल रिलेशन का ये तैयार किया है, इंडस्ट्रियल रिलेशन है लेबर लॉस का, और इंडियन इकोनॉमी और के मैंने स्टैटिक पार्ट में हम लोगों ने अपने मटेरियल में ये चीजें कवर की है। ठीक है, ये पिछले कुछ सालों में हमारे यहाँ से सिलेक्शंस हैं, और ये सारे के सारे कोर्सेज हम इन सारे रिसोर्सेज से बना के देते हैं। ये हमारे कुछ स्टार परफॉर्मर हैं, और ये सारे के सारे कोर्सेज हम डिजाइन करते हैं। तो फ्रेंड थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। लॉकडाउन है, कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, आप इसको यूटिलाइज कीजिए और पढ़िए।